Hi everyone, I am Surabhi Saxena, your ACCA mentor for the subject performance management. बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस होते हैं दैट सब्जेक्ट में एग्जाम कैसे देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड व्हाट इज द एग्जाम स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स. Well, if you want answer for all these questions, do watch this video till the end. So आज के वीडियो में हम यही बताएंगे what are the exam tips and tricks for the subject performance management. So let's begin. हमारी first slide ही है that is your exam format. दैट इज पेपर आता कैसे है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं. सो एज पर ACCA पेपर पैटर्न basically you have 3 sections. First of all, performance management is a subject of applied skills and it is of 3 hours. 3 घंटे का पेपर है and आपको 3 section में 100 mark का पेपर divided है. Now how it is divided? So for section A, how many questions you will get? It is MCQ based questions, so you will get multiple choice questions. 15 MCQ questions you will get, and each question is of 2 marks. So this particular section turns out to be 30 marks. Now what happens in this particular case, that you will get any question from any particular topic, right? ऐसा कोई limited नहीं है कि इस particular chapters में से MCQs ज़्यादा आएंगे. कुछ भी हो सकता है, आपको ऑप्शंस फॉर्मेट में भी मिल सकता है. इट कुड बी इन द फिल अप फॉर्मेट एज वेल. दिस पर्टिकुलर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 30 मार्क्स. नाउ कमिंग टू द सेक्शन बी, which I often refer to as your scenario, case scenario based questions you get. Now what do we mean by scenario over here? आपको एक केस स्टडी दी जाएगी एंड उसके बेसिस पे दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, राइट? सो 3 केस स्टडीज, each case study consists of 5 questions, right? So ये particular section भी कितने marks का हो गया? Again it is of 30 marks, right? ऐसे करके आपका 60 मार्क का पेपर बन गया. अब द लास्ट सेक्शन इज योर सेक्शन सी. नाउ हियर you will get a long questions, right? What do we mean by long questions? Where you will have a proper calculative, assessing, evaluating kind of questions, जहाँ पे बहुत बड़ा आपको database दे रखा होगा, you have to read it and you have to calculate it. The best part is 2 ही questions करने हैं, but एक question आपका 20 marks का है. And this particular section turns out to be how much marks? Obviously 2 into 20 turns out to be your 40 marks. Likewise, आपका total paper कितने marks का हो गया? ये हो गया आपका 100 mark के paper का bifurcation, right? So let's move with the next slide. And the next slide is now most frequently used verbs. So what do we mean by that? भाई मुझे ये तो पता चल गया कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, राइट? और कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट पेपर करना कैसे है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द पेपर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बहुत इजी है बट उसको ट्रिकी करने के लिए उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है एंड यू गेट कंफ्यूज्ड बाय रीडिंग द question. So ये आपको most frequently used verbs, easily it is available on ACCA study hub. आप log in करोगे, आपको before you begin section में जाकर के मिल जाएगा. Now there are 3 most commonly used verbs. One is assess, second is explain, and third is your calculate. इन तीनों के मतलब क्या होता है ना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि असेस करने में और एक्सप्लेन करने में भी डिफरेंस है. व्हाट डू वी मीन बाय असेस? व्हाट ACCA सेज, जज द वर्थ, importance, evaluate or estimate the nature, quality or significance, assess the performance of the purchase manager, whatever the variance you have got, right? So supposingly मेरा material variance आया है, material price variance, let's say मेरे पास एक favorable आया है. फेवरेबल मतलब पॉजिटिव. ऑब्वियसली जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो वैसे समझ लो कि मेरा कुछ डिफरेंस था, वो आ रहा है लेट्स से 250 पॉजिटिव. मतलब क्या है, परचेज मैनेजर ने
जो मटेरियल परचेज करा है वो चीप क्वालिटी पे परचेज करा है. नाउ यू हैव टू असेस द सिचुएशन, राइट, दैट वेदर द मैनेजर हैज डन इट राइट और रॉन्ग. सो यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जज द वर्थ एंड द इम्पोर्टेंस. अगर क्वेश्चन असेस बोल रहा है तो वैसे आपको आंसर करना है क्वेश्चन में, राइट. एंड जनरली दीज टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट कहाँ पर, मेजरली इन योर 40 मार्क्स क्वेश्चन, जहाँ पे वो आपसे बहुत कैटेगरिकली और बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा है. दे डोंट नीड एनी वेग आंसर्स, दे नीड वेरी स्पेसिफिक आंसर्स. सेकेंड आते हैं एक्सप्लेन. हम सब जानते हैं जहां पे वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है जो भी आपने करा है. फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, लेट्स से मैंने निकाला कंट्रीब्यूशन, राइट. अभी कंट्रीब्यूशन भी जिनको नहीं पता है, आपका सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का मान लो डिफरेंस आ रहा है, लेट्स से 80 रुपीज, ठीक है. तो आपको एक्सप्लेन करना है ये जो भी आपने कैलकुलेशंस करी है, राइट. सो दैट इज योर एक्सप्लेनेशन. यू डोंट हैव टू असेस, यू डोंट हैव टू जज एनीथिंग ओवर हियर. आपने जो करा है उसको एक्सप्लेन कर दो, राइट. एंड लास्ट इज योर कैलकुलेशन. सो वी ऑल नो व्हाट इज कैलकुलेट. आप सिंपली उसको क्या करना है, जो भी आपने करा है उसका कैलकुलेशंस आपको दिखानी है. सो इट इज बेसिकली योर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड इज टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. भाई ये भी देख लिया कि पेपर कैसे पैटर्न का आएगा, ये देख लिया कि क्या क्या वर्ड्स होते हैं. ऑफन यू नो आई हियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड दे से मैम पेपर छूट गया, आधा था पूरा नहीं कर पाए, आधा था बहुत लेंथी पेपर था, अटेम्प्ट करते करते रह गए. एंड दिस इज द चैलेंज विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. एंड आई ऑफन से प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस भी करा तब भी छूट गए. हम स्ट्रैटेजिकली टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको प्लान नहीं करते हैं. व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ओवर हियर इज, ये हम देखते हैं. देखो हमें पता है कि 3 सेक्शंस में पेपर बैठा हुआ है. हम जब 10th या 12th में थे हमें बोला जाता था कि पहले पेपर रीड कर लो, जो इजी आता है उसको करते चले जाओ, एंड देन यू लीव फॉर दी जो अभी आपको डिफिकल्ट लगता है वो बाद में आराम से सोच करके करो. कुछ कुछ वैसी ही स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी है, बट ऑब्वियसली इट्स अ प्रोफेशनल पेपर, तो थोड़ा सा हमें टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है. व्हाट इज सेक्शन ए, सबको पता है अब तो एमसीक्यू बेस्ड है, 30 मार्क्स आएंगे. हम ये टाइमर मान के चलते हैं कि आपको एक क्वेश्चन करने में ना 1.8 मिनट्स लगने चाहिए. सो टोटल आपका 54 मिनट्स लगना चाहिए, बट हम सजेस्ट करते हैं कि आपको 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. देखो 3 hours means how many minutes it should be there, 60 into 3 180 minutes. 180 मिनट का हिसाब है ये पूरा. तो हम क्या बोल रहे हैं, 180 मिनट में से 40 मिनट्स, 30 मार्क्स, 100 में से 30% पेपर ही आपको 40 मिनट्स ही देने हैं. आप क्या करो, रीड करो क्वेश्चन को, अगर समझ में आया, आपको आता है क्वेश्चन, टिकट मूव अहेड, टिकट मूव अहेड. नहीं आता है, गिव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टू द क्वेश्चन. अगर तुमको लगता है कि आता है बट थोड़ा सा एक दो बार रीड करेंगे एंड यू नो यू विल गेट द आंसर, तो टाइम स्पेंड करो. अगर तुमको रीड करने में या तुमको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं आता है, रीड एंड स्किप. दैट इज व्हाट वी ऑफन रिकमेंड कि आप रीड करो और स्किप करते जाओ, क्योंकि इतना टाइम इस पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है. सेकेंड इज योर सेक्शन बी. अगेन है तो 30 मार्क्स गई, वही 54 मिनट्स आए, बट रिमेंबर इट इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. यहाँ पे हम बोलते हैं कि आप 50 मिनट्स लगाओ, क्योंकि केस स्टडी है, इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए कंपनी है एंड दे हैव फॉर सर्टन काइंड्स ऑफ वेरिएंसेस, ठीक है, उनका मटेरियल प्राइस वेरिएंस लेट से मान लो 50 फेवरेबल आ रहा था, आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस 50 एडवर्स आ रहा था, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है, राइट. तो एक क्वेश्चन का आप फिगर कैलकुलेट करोगे, उससे आपके हो सकता है दूसरे आंसर्स भी रिलेटेड हो. सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग. henceforth what we suggest is you give a good amount of time and we say कम से कम 50 मिनट्स आप आराम से दो, रीड करो, समझो एंड देन मूव अहेड. सेक्शन सी पे आते हैं. हम सबको पता है 40 मार्क्स का, हम 1.8 की मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करते तो 72 मिनट्स सजेस्टेड आता है. हम यहाँ पे बोलते हैं आप यहाँ पे 72 नहीं
80 मिनट्स लो, कम से कम 1 से सवा घंटा अपने पेपर का आपको सेक्शन सी को ही देना है। कैसे स्कोर करोगे? आप स्कोर ही नहीं कर पाओगे अगर आपने ये सेक्शन छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे सिर्फ रिलाई करते हैं 60 मार्क के पेपर पे, विच इज नॉट करेक्ट। आई नेवर एवर रिकमेंड दिस। वाई? बिकॉज आपका एक एमसीक्यू गलत होता है, आपका पूरा 2 नंबर जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ नो स्टेप मार्किंग विल बी देयर। सो हाउ आर यू सो श्योर कि आप 60 मार्क का पेपर करके अगर आपको 50 मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि 50% इज पासिंग, राइट? तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपको हेल्प करता है। पढ़ के आओ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, रीड केयरफुली, देखो वो क्या बोल रहा है और क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेप मार्किंग से यू कैन विन द बैटल, राइट? एंड देखो, अगर टोटल करोगे तो भी आपके पास 10 मिनट्स बफर बचते हैं। तो आप यहाँ पे अगर नहीं कोई एमसीक्यू सॉल्व कर पाए थे या आपको लगता है नहीं सेक्शन सी में मैं और उसको बेटर कर सकते हैं, दिस 10 मिनट यू कैन यूटिलाइज इट वेल, right? So this is your time management strategy whenever you are solving the paper or whenever you are giving the exam. Do follow this practice. Okay, let's move ahead with respect to syllabus priority. Obviously नेक्स्ट क्वेश्चन सबके पास ये आता है कि ठीक है, यहाँ तक तो पता चल गया कि पेपर पैटर्न आता कैसे है, ये सब हम रीड भी कर लेंगे, बट मेन मेंटोरिंग कहाँ आती है कि पहले क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट? सो पहले क्या पढ़ना है, दैट टॉपिक इज मेंशन्ड ओवर हियर. सो अगर आप देखोगे, व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड इज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को आप बनाओ अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर आप सिलेबस देखोगे तो अंडर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स लाइक रेलेवेंट कॉस्टिंग, सीवीपी, डिसीजन मेकिंग. यही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, दैट यू आर मेकिंग द डिसीजंस कि आपको प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या मेक करना चाहिए, या आपको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए मार्केट से, या डिसीजंस होते हैं आपको फैक्ट्री शट डाउन करना है या कंटिन्यू करने हैं. वो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं. दैट इज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स. मेक इट एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल. सो दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकेंड, आप आओ आपके बजटिंग एंड कंट्रोल पे, बिकॉज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट बजटिंग ऑल्सो, कि आपके पास पैसा कितना है एंड हाउ यू आर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इट. सो इट ऑल्सो फॉर्म्स अ रेलेवेंट पोर्शन ऑफ योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. पहला, इसको प्रायोरिटी दीजिए. सेकेंड, आपका जो डी सेक्शन है बजटिंग एंड कंट्रोल, उसको स्ट्रॉन्ग करो. थर्ड नंबर पे आता है आपका दिस स्पेशलाइज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, जहाँ पे आप स्पेशल टूल्स या मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो. जैसे योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है इसमें. सो यू कैन स्टडी लाइकवाइज कि पहले सी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करा, देन डी, then B, then come to your E topic, that is performance measurement and control, where you have topics like ratio and key performance indicators, and last is your employability and technological skills. So this should be your priority, and this is how you should make your concepts also stronger. इन दोनों को या फर्स्ट 3 को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर. ओके, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड. सो what we have now, a very relevant slide is this, that is your common mistakes. I would like to share that what all common mistakes students generally do, so that whenever you are studying or whenever you are preparing for your examinations, you make these mistakes, you try to avoid these mistakes. आप ये mistakes को अगर कर भी रहे हो तो आप नोट करो कि आप ये mistakes repeatedly ना करो. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे 20 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, तो ऑब्वियसली देर आर डिटेल्स अबव इट, एंड व्हाट डज इट से. देखो 20 मार्क का बाइफिकेशन कैसे किया इन्होंने. 11 मार्क्स में दे आस्क्ड यू टू कैलकुलेट वेरिएंसेस फॉर मंथ 2 as much detail as the information allows. बहुत क्लियरली बोलते हैं जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उतना ही आप डिटेल में जाकर के इन वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है. कोई 11 नंबर का क्वेश्चन है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. लेकिन
यू वर्ब्स पे जाइए, वर्ब्स पे जो मैंने सेकंड स्लाइड बोली थी वहां पे क्या था, कैलकुलेट आ गया वर्ड कैलकुलेट। यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको वेरिएंसेस बताने हैं, ठीक है। कैलकुलेट करो और आपका आंसर आधा चला जाएगा ये। लेकिन 20 मार्क्स में से सिर्फ आप कितना स्कोर कर पाए, अभी सिर्फ 11 नंबर स्कोर कर पाए। अभी भी 9 मार्क्स इज रिमेनिंग। रीड व्हाट इट इज आस्किंग यू इन दैट 9 नंबर क्वेश्चन। Comment on the performance of the purchasing manager, the production director, and the maintenance manager using the variances and other information above, and reach a conclusion as to whether or not they have performed well. यहाँ पे वो पूरा कहानी लिख दी उसने। बोला परचेज मैनेजर, आपका प्रोडक्शन डायरेक्टर और मेंटेनेंस मैनेजर जो है उनकी परफॉर्मेंस पे कमेंट करो और बताओ उन्होंने अच्छा काम करा या नहीं करा, पर किस बेसिस पे, आपके वेरिएंस के कैलकुलेशन के बेसिस पे। अब यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि भाई वो मुझसे कमेंट पूछ रहा है कि हाँ इसने अच्छा करा या नहीं करा, हाँ इसने गलत करा नहीं करा, एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट। तो असेस, comment, these all come over here. These are the verbs which we have to keep in mind. Now what are the students generally commit the mistake over here? Students क्या करेंगे, variances लिखे, अच्छा comment करना है तो students क्या करेंगे, जैसे for example मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया मेरा लेट्स से 50 फेवरेबल, ठीक है। तो जिस तरीके से कैलकुलेशन करी गई है आप बस उसी को ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको सिर्फ एक लाइन में स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर देते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला ये हुआ, लेट्स से मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला हुआ आपका स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी इतनी थी, स्टैंडर्ड प्राइस थी, दोनों का डिफरेंस था इसलिए फेवरेबल आया। So this is not what they are asking. You don't have to do this. ये तो वो खुद भी समझ रहे हैं ना जो हमने कैलकुलेशंस करी है। What you have to do is you have to comment. अब कमेंट आप देखिए इन्होंने आंसर क्या दिया है। आई हैव जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ जस्ट वन पैराग्राफ सो टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप जाकर के पूरा रीड करके समझ के फिर आंसर देखो। देखो वो क्या बोलता है, परचेजिंग मैनेजर की परफॉर्मेंस पूछ रहा है आपसे। तो अगर मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, असेस करो। आज मैं परचेज मैनेजर हूँ तो अगर मेरा कोई वेरिएंस मतलब दोनों प्राइस में डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मैंने कम पैसा खर्चा किया है, मतलब मैंने काम अच्छा किया है, मैं एक चीप मटेरियल लेके आई हूँ, अच्छा नेगोशिएशन करा है, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इट ओवर हियर। और उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएंसेस पे क्या आ रहा है। अगर आप चीप मटेरियल लेके आए होगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन डायरेक्टर जो है उसने काम ढंग से नहीं करा होगा, क्योंकि चीप मटेरियल जो है उससे क्या हुआ होगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना होगा। दैट इज हाउ यू हैव टू रिलेट ईच एंड एवरी वेरिएंस एंड यू हैव टू कॉमेंट ऑन दिस, देन ओनली यू विल गेट दीज 9 मार्क्स, ठीक है। तो जो हमने करा है हमें उसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है, हमें रादर हम क्या समझे, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, व्हाट वी हैव असेस्ड या मैनेजर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या है वो मुझे लिखना है, ठीक है। Now let's move to the next slide, and our next slide is with respect to target setting to pass. आपको ऑब्वियसली हम एग्जाम क्लियर करना ही है तो उसके लिए लास्ट है आपका कि 50 मार्क्स कैसे लेके आएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, सेक्शन ए में आप 30 मार्क्स का पेपर है, यू ट्राई टू गेट 10 क्वेश्चंस राइट। जब आप 10 क्वेश्चंस राइट कर लोगे तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड मतलब आपने अगर 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस राइट करो तो इतना परसेंटेज में प्रोपोर्शन में करोगे तो आप उतना पास होने का आपका रहेगा। Section A, because it is easier, so you can get 15 out of 10 questions right and you can get 20 marks. Out of section B, now we suggest कि आप 3 case studies में से 2 case studies at least correct करो तो आपको 20 marks मिल जाएंगे. So out of your 40 marks are not going anywhere because these sections are relevantly lighter and easy to cover up. सेक्शन सी में हम बोलते हैं कि आप अटेम्प्ट पूरा करो, अटेम्प्ट बोथ द केस स्टडीज, बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला बिकॉज यू हैव योर स्टेप मार्किंग, तो वी ट्राई कि 20 मार्क्स तो आप 40 में से 20 मार्क्स एटलीस्ट यहाँ
पे कवर कर लो. सो व्हेन यू टेक अ what you say take 60 मार्क्स क्राइटेरिया के मेरे को 50 में से 50 को नहीं आ पाते हैं, जब हम बोलते हैं कि 50 का ही पढ़ के जाओगे, आप ट्राई करो कि 60 मार्क्स का आप करेक्ट करो पेपर, तो आप एटलीस्ट उसको पास कर लोगे पेपर को, 50 मार्क्स यू विल गेट इट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. And the next slide is your what GCSE provides the tips. Our tips or GCSE pro tips for this particular subject is ACCA practice platform. So we recommend that you practice on the ACCA practice platform, which is always available to the students. It is helpful and beneficial. आपको idea लगता रहता है कि कैसे पेपर आ रहे हैं and how you have to perform and how you have to write the answers. Second pointer is Study Hub. So Study Hub is a very good resource which has been provided by ACCA, but it is insufficient because in terms of practicing questions and all. So for the purpose of more resources, you can watch out our videos, tutorial videos available on YouTube for the further questions and further resources. Second is your presentation. Now it is about how you write the answers. So we always say structure your answer neatly with headings and blueprints. Try that whatever the calculations you are giving, it should be very clear. It should not be vague, and it should be structured properly. कि आपका you don't have to go at multiple cells कि कहाँ पे क्या लिखा है. Just be very sure कि अगर आपके पास वो पेपर है तो आप उसको read कर पा रहे हो. ठीक है. Getting stuck in examination, so we always say it is you whenever you're going and giving the examinations, you are anxious, we always say stay calm, move to the next question. अगर आपको कोई question नहीं आता है, स्टे काम, रीड इट. एक बार रीड करो, नहीं आता है, दो बार रीड करो, नहीं आता है, कोई बात नहीं, just leave it and move ahead to the next question. Do not spend a lot of time on one question, and then whenever time remains you can return back to the questions which you have left. Read carefully. It is very important to understand the question, what question is asking you. क्वेश्चन पूछ रहा है आपको असेस करने के लिए, आप कर रहे हो सिर्फ कैलकुलेशन. जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था वो गलती नहीं करनी है. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड पेशेंटली. एंड लास्ट इज योर writing skills. So you have to be concise, you have to be structured, you have to ensure कि जो question पूछ रहा है at least वो हम provide करा रहे हैं उसमें answer में. We are not going unnecessarily vague answers, and if you want we do evaluate mock papers as well, so you can contact us any point of time with this mock papers as well. So that was all for the tips and tricks and examination perspective for performance management subject. So if you also want help with respect to any ACCA subject, then you can feel free to reach out to us, and we have our website www.gccglobal.com. You can visit our website and you can see the various programs, and we have created AIRs and world ranks as well, and we will be very happy to assist you as well and provide you, mentor you and provide you with the guidance of how to become a world ranker. So do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.